बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is class 9th and I am your English teacher. I am teaching you the new book of English 9th class. We have already covered 4 chapters, 4 units. Today I will teach you, I will explain another chapter, chapter number 6. The name of chapter number 6 is Gender Equality. Mean equality between male and females, or men and women. Okay. And this is week number 3, video number 2, date 7 to 12 December, and Monday to Saturday, unit 6 we are reading. Today I will read and after then translate and explain. After then I will solve reading exercises, reading comprehension, the exercise of reading comprehension. The unit's name is the role of women in Pakistan creation and development. In the struggle of the Pakistan movement, what role the women played in the struggle of Pakistan movement? No doubt that men played main role, but women also played main role in the struggle of Pakistan's creation and development. Okay, there are so many women are mentioned in this book. For example, Fatima Jinnah was the sister of Quaid Azam Mamdali Jinnah, is also mentioned in this book, and Professor Anita Ghulam Ali, and also Bibi Bilkis Bano. Currently she is working for the society, for the social development, the Pakistan, and so many others, Begum Jahan Ara Shanwaz, Begum Rana Liaquat Ali, so many other women are there, but 5 women are mentioned in this unit. Okay, if you will open page number 130. So we will discuss about that, the role of women. What role did the women played in the struggle of Pakistan? Okay, from 1857 to 1947. So let's start. Pick up your books. Open page number 130. 130. There is unit number 6, gender equality. Matlab equality between men and women. We should treat the men and women equally in Pakistan. Pakistan give rights to the equality between men and women. We should follow that rule. We should follow that step. We should follow that rule of Quaid Azam and also Pakistan. And we should give equality or equal rights to the women also. Okay, we are not treated as women equally as compared to the men. It is not correct. According to the Constitution of Pakistan, we should treat them equally. Let's read in units that what is written in the unit are given in the units. So open page number 130. 130, there are exercises are mentioned here. Leave that page and come 131. Okay. Unit 6.1. Reading comprehension. Read and after then comprehends or understands. So pre-reading, discuss the following questions with the students. So pre-reading means reading before reading. What do you know about the women, which are given here in the columns? There are 10 women are given. What do you know about them? If you know about any one woman, then you should make like this shape. You should tick the as shapes are mentioned. You should tick that shape. If you don't know, then you should tick here. Okay.
This is the symbol of sign of happiness, knowledge or information. This is mean you don't know. Okay. So here boxes are mentioned also. For example, if you know Fatima Jana, then you should, there are two columns. If you know about her, then you should take first column and leave the next column. And if you know about Lady Sugra Hidayatullah, like these all ladies, you have to make that. Okay. So I am going to reading text. Next come to the reading text. Listen me carefully and also understand it. If you will open the book and if you will see, or if your eyes are on the text, then you can understand easily. Okay, let's start. Reading text. The role of women in Pakistan's creation and development. Okay, I already told you that which role played by the women in the struggle of Pakistan, for the making of Pakistan. पाकिस्तान में औरतों का, पाकिस्तान की बनाने में, तख्लीक में और तरक्की में औरतों का किरदार क्या है. Sana was sitting silently on the last bench of her classroom. Sana was, she was a student of a classroom. There the Sana's group will be mentioned. वो अपनी आखिरी बेंच पे बैठी हुई थी, उदास बैठी हुई थी, खामोशी से बैठी हुई थी. Alia was sitting next to her and noticed a confused expression on her face. She asked Sana, "What are you worried about?" Alia भी उनके साथ बैठी हुई थी पीछे. They both were friends. And she noticed, उन्हें महसूस कर लिया कि सना जो है वो कंफ्यूज बैठी है, कोई मसला है. Then she asked from Sana, "What's problem?" मसला क्या है? उन्हें सना से पूछा. आलिया ने as a friend. They are like back bench, or they were sitting on the back bench. Next turn the page. Alia, "I don't have computer. How will I gather the information for our social studies assignments? Important women of Pakistan," Sana replied. There was an assignment given to them. The social study teacher gave assignment to them, or that is why she was worried. वो परेशान थी क्योंकि उनके पास कंप्यूटर नहीं था, मतलब वो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करती. अच्छा, टॉपिक क्या था? असाइनमेंट. व्हाट वाज असाइनमेंट टॉपिक ऑफ सोशल स्टडी? इम्पोर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान. ये टॉपिक था सोशल स्टडी का. परेशान कौन थी? सना. किसको बता रही थी? आलिया को बता रही थी. क्यों परेशान थी? कंप्यूटर नहीं था, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करती. So don't worry, all of us will get together during the recess and divide the task amongst ourselves. You can bring the information from the school library. आलिया ने सना को मतलब उन्होंने तसल्ली दिलाई कि आप परेशान ना हो, हम लोग रेसेस के टाइम, ब्रेक के टाइम साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कौन सा इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा और किसको कौन सा तरीका दिया जाए. तो इनको कहा गया कि आपको हम तरीका देंगे, आप लाइब्रेरी यूज कर सकती हैं. यू कैन यूज द लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी. देयर आर सो मेनी बुक्स अबाउट दैट टॉपिक. यू कैन सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स व्हिच आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी. Yes, I can do that. Sana nodded. Alia smiled. सना ने मतलब खुशी का इजहार किया. हाँ मैं मतलब मैं ऐसा ही करूँगी, लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी. और मुस्कुराहट दे दी, मतलब आलिया के चेहरे पे मुस्कुराहट, मतलब उनकी तसल्ली बख्श मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वो उनकी दोस्त परेशान थी, वो खुश हो गई. During the recess, the members of Sana's group took their lunch boxes and sat under the tall, shady neem tree, which was their favorite spot. The group leader, Alia, started off like an expert planner. अच्छा, रेसेस टाइम वो एक ही जगह पे बैठते हैं दरख्त के नीचे, बड़े बड़े दरख्तों के, नीम के दरख्तों के नीचे. वो उनकी मतलब फेवरेट स्पॉट थी. फेवरेट स्पॉट मीन वो हर रिसेस में वहीं पे जाके बैठ के डिस्कस किया करते थे. आलिया ने बात शुरू की, जो उनको असाइनमेंट टॉपिक मिला था, इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, ग्रुप मेंबर. These two members are part of the group. They have to make the assignment. Which assignment? Important women of Pakistan.
It was given by a social study teacher. Okay. Do you remember our science teacher taught us a problem solving tool called Ideal? आलिया ने कहा कि आप लोगों को याद है कि एक साइंस का टीचर थे हमारे, मतलब उन्होंने हमें बताया था कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी मसला हो, उनका एक ही टूल होता है, उसको क्या कहा जाता है? आइडियल. ओके, व्हाट वी कॉल इट? आइडियल. दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टूल है, ठीक है, हथियार है, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो हमारी जिंदगी का, अगर इसको हम डिफाइन करेंगे वन बाय वन अल्फाबेट वाइज, देन वी विल नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. लेट्स सी. एवरीवन रिप्लाइड, ओ यस वी डू, बट इट इज यूज्ड फॉर साइंस. जैसे आलिया ने बताया कि हमें आइडियल जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, साइंस के टीचर ने बताया था, सब ग्रुप के मेंबर ने कहा था हाँ ये तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो साइंस से मुतालिक है, ये तो हमारा सोशल स्टडी का टॉपिक है. Sameer said no, it is tool for solving all kinds of problems and for planning too. ये जो टूल्स है, ये जो टूल है आइडियल, ये सारे जो भी किस्म, किसी भी नोयत का प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टूल है, और इससे हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अनदर मेंबर इज समीर. ओके, Ahmed explained, first of all we identify what the problem is, then we define what exact we want to do to solve the problem. Next we try and to find out as much as we can about how to solve it. After that we take the best possible action to try and solve it. Finally we look back to see whether the problem has been solved or not. अहमद ने एक्सप्लेन किया है आइडियल को, कैसे ये टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है. अल्फाबेट वाइज अहमद ने एक्सप्लेन किया है. एंड अदर कैरेक्टर इज अहमद. हाउ? आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई. आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई. अहमद हैज टोल्ड हियर. ओके. एंड डी defines. D define. E explore. Okay. A action. L look back. That is problem solving tool, ideal, IDEAL. If there is a problem in our life, first of all we will do? We will identify the problem. मसला है कौन सा, पहचानने की कोशिश करेंगे, मसला किस नौयत का और कैसे सॉल्व होगा. After that we will define the problem. उनके मसले के फैक्ट्स बताएंगे, कॉजेज बताएंगे, और मतलब उनके तरीके ढूंढेंगे कि सॉल्व कैसे होगा. After that we will explore, सर्च करेंगे, मजीद सर्चिंग करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत में है, हमें चाहिए इनको सॉल्व करने की प्रॉब्लम को. आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट एक्शन. ए, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोर, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन. हम अमल में लाएंगे उस प्रॉब्लम को, प्रैक्टिस करेंगे कि भाई मतलब उनको सॉल्व करने में हम फिजिकली जो भी जितनी भी मतलब हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो लाएंगे अमल में. उसके बाद ए, लुक बैक. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हम पीछे देखेंगे प्रॉब्लम को, जो भी हमने कोशिशें की हैं, एफर्ट्स किए हैं, इधर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट. एट द लास्ट वी विल सी, वी विल लुक बैक दैट इधर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड और नॉट. ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. अहमद हैज एक्सप्लेन्ड. सो said Hania, our problem is doing the assignment for which we need to find information from different sources. हमारा प्रॉब्लम कौन सा है? सहानिया इज अनदर कैरेक्टर. हानिया ने कहा है कि हमारा प्रॉब्लम जो है असाइनमेंट है, हमें अब सोर्सेज ढूंढने चाहिए कि कैसे हम ये असाइनमेंट पूरी कर पाएंगे.
Exactly, said Alia. We also need to decide who will do what and then prepare and give our presentation. आलिया ने कहा ठीक है, यही सोर्सेज है, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, मतलब हमें डिवाइड करना चाहिए किसको कौन सा काम करना है, और फिर हम मतलब जो भी सोर्सेज है उसके बारे में बताएंगे. Next, Alia told everyone to brainstorm and make a list of the women that they would like to work on. Everyone took out a sheet of paper and wrote many names. The list was very long. Finally, after a lot of discussion, they agreed on 6 names. आलिया ने फिर सबको मतलब बताया कि आप लोग सब ऐसा करें, एक लिस्ट बना दें जिस औरतों के बारे में, मतलब जिन औरतों ने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लिया. बहुत सारा लिस्ट बनी, लिस्ट बहुत लेंदी थी, तो उन्होंने 6 नेम सिलेक्ट किए. इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. 6 नेम सिलेक्ट किए थे, लेकिन मजीद उन्होंने एक नाम खत्म कर दिया था. 5 नेम्स यहाँ पे मेंशन है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो मजीद बाद में आएंगे तो फिर पता चल जाएगा कौन से नेम्स हैं. सना सेड आई विल ब्रिंग इंफॉर्मेशन ऑन फातिमा जना फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक्स. सना ने कहा कि मैं फातिमा जना के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, लाइब्रेरी के बुक्स यूज करूंगी मैं. अच्छा, अब जो है इंफॉर्मेशन किन के बारे में कलेक्ट की जा रही है? फातिमा जिन्ना. सोर्सेज लाइब्रेरी. Okay, and first woman is the woman. First is the woman. I have written the. Why? Because these are the already mentioned women, or particular women. That's why. Samir said, my elder brother Wakar bhai has a laptop, so I can bring information from the internet. समीर ने कहा कि मेरे बड़े भाई के पास, वकार भाई जिसका नाम है, उनके पास लैपटॉप है, मैं इंफॉर्मेशन लैपटॉप से ही कलेक्ट करूंगा. अच्छा, दूसरा रिसोर्सेज कौन सा है? लैपटॉप. First, second. Okay, next page 133. Alia suddenly realized that Razia was sitting quietly and had not shared her opinions with the group, so she asked Razia, "What about you? Which source can you access?" There was another character, another member who was sitting silently. Razia was there. Alia ने महसूस किया रजिया खामोश बैठी हुई है. उन्होंने रजिया से कहा कि आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी और कैसे करेंगी? ठीक है, नंबर 6 रजिया. Razia replied shyly, "My father sells newspaper. I will ask him to bring old and new newspapers for this assignment." रजिया ने बड़े शर्मीले अंदाज से कहा कि मेरे अब्बू जो है वो न्यूज़पेपर भेजते हैं, इसलिए मैं न्यूज़पेपर के जरिए ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊंगी. Why Razia was shy? Because Razia was thinking that to sell the newspaper is not, you can say, good profession. That is why. Okay, it was treated badly in the society. इसलिए रजिया जो है वो शाय हो गई थी, क्योंकि वो समझती थी न्यूज़पेपर भेजना एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, जिसको मुआशरे में इज्जत नहीं दी जाती है. लेकिन अच्छे लोग जो हैं ऐसा नहीं करते हैं इसे कर. सो रजिया ने कौन सा सोर्स सिलेक्ट किया? न्यूज़पेपर का. सना ने कौन सा? लाइब्रेरी का. समीर ने लैपटॉप, रजिया न्यूज़पेपर. ओके, दैट वुड बी ग्रेट, एवरीवन एक्सक्लेम सिमल्टेनियसली. हर किसी, मतलब जितने मेंबर्स थे 6 मेंबर्स, उन्होंने एक ही अल्फाज में, एक ही मतलब मर्तबा बोला कि ये तो बहुत अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर के जरिए कलेक्ट करेंगी इंफॉर्मेशन. I will use my uncle's smartphone to gather the required information, said Ahmed. अहमद ने कहा कि मैं स्मार्टफोन जो है वो यूज करूंगा अपने अंकल का. मेरे अंकल के पास स्मार्टफोन है, मैं वो यूज करूंगा, मोबाइल, टच मोबाइल एक्सेट्रा. What is the smartphone? How will you search information on a phone? Asked Sana. सना ने पूछा, जिनको पता नहीं था स्मार्टफोन के बारे में, स्मार्टफोन क्या होता है, आप इसके जरिए इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करेंगे? It is a mobile phone that has a touch screen instead of a keyboard for performing different tasks, and we can use internet on it also, explained Ahmed with actions. अहमद ने एक्शंस करके बताया कि ये एक मोबाइल फोन होता है जिससे हम यूज, मतलब टच स्क्रीन होता है, उसको टच करते हैं तो ओपन हो जाता है, जिसके जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट, उसमें नेट भी यूज कर सकते हैं
और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आलिया इन्फॉर्म दैट her mother had a big collections of magazines, she would use them for this assignment. आलिया ने कहा कि she will collect information through the magazines, क्योंकि उनकी अम्मी जो है मैगजीन्स पढ़ती थी, उनके पास बहुत सारे मैगजीन्स थे, मैगजीन्स के जरिए वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी आलिया। हानिया said that she would get information from some journals and books. हानिया ने कहा कि मैं जर्नल्स एंड बुक्स के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। जर्नल्स एंड बुक्स एंड अदर सोर्स, 6 sources were there. Okay, Sana library, Sana will use library for collecting of information. आलिया मैगजीन्स, समीर लैपटॉप, बकार भाई लैपटॉप, अहमद स्मार्टफोन, अंकल स्मार्टफोन, हानिया journals and books, and Razia will use newspapers. Okay, finally they divided the list of the famous women amongst themselves and agreed to meet again with the information on the following Monday. हर किसी ने मतलब कहा कि इन औरतों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और सब कलेक्ट करके मंडे को मिलेंगे, फिर एक दूसरे से शेयर करेंगे। In the next meeting they shared their material and rehearsed their presentations. उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग में एक दूसरे से मटेरियल शेयर किया और प्रेजेंटेशन इनको प्रेजेंट करना था स्कूल क्लास में, उनकी प्रैक्टिस की। On the project day they gave marvelous presentations because the group members had done their jobs very well. प्रेजेंटेशन मतलब जब प्रेजेंटेशन देनी थी या प्रोजेक्ट पेश करना था तो उन्होंने बेहतरीन तरीके में, शानदार तरीके में, मार्वेलस मीन शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे और सब ने अच्छे तरीके से तैयारी की थी। Below is the information that they had gathered through the various media sources. नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है जिन्होंने मतलब उन्होंने सना के ग्रुप ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, मीडिया सोर्सेज, ये सोर्सेज यूज किए थे उन लोगों ने। प्रोजेक्ट क्या था, असाइनमेंट क्या थी, इंपॉर्टेंट वुमेन ऑफ पाकिस्तान, सोशल स्टडीज के टीचर ने दिया था, ठीक है। और आइडियल जो है वो सॉल्विंग टूल है, आलिया ने बताया था, साइंस के टीचर ने बताया था। इसको आप अल्फाबेटिकली, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई, डी स्टैंड्स फॉर डिफाइन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोर, ए स्टैंड्स फॉर एक्शंस, एल स्टैंड्स फॉर लुक बैक। सो लेट्स स्टार्ट or let's read or know about the women who took part in the Pakistan's creation and development. Some famous Pakistani women. Mohtरमा Fatima Jinnah. She was born in 1893 and she died in 1969. She was Quaid-e-Azam Hamdani Jinnah's younger sister. वो Quaid-e-Azam Hamdani Jinnah की छोटी बहन थी, Quaid-e-Azam से छोटी थी। She helped in the struggle for the establishment of Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान को बनाने में कायद-ए-आज़म की मदद की थी। She left dentistry to live with her brother and support him. वो दांतों की डॉक्टर थी, उन्होंने छोड़ दी थी डेंटिस्ट्री और कायद-ए-आज़म की मदद की थी। अभी भी कराची में फातिमा जिन्ना डेंटिस्ट कॉलेज मौजूद है। Her support continued for about 28 years, including the last 19 टायरिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। 28 साल उन्होंने कायद-ए-आज़म की मतलब सपोर्ट की और जो लास्ट के 9 ईयर्स थे कायद-ए-आज़म के, उनमें उन्होंने मतलब वो अनथक मेहनत करते थे, उसमें वो हमेशा कायद-ए-आज़म के साथ रहा करती थी। Through her, the Muslim women of the subcontinent were able to interview Muhammad Ali Jinnah and seek his guidance. इनके ही जरिए मुसलमान जो औरतें थी, सियासी औरतें, वो कायद-ए-आज़म से मिल पाती थी ताकि वो गाइडेंस हासिल कर सकें कि पाकिस्तान को बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए। So she was a source of meeting with the Quaid-e-Azam and with the women of Muslim women. The grateful nation gave her the title of Madre Millat, which means mother of nation. पाकिस्तानी कौम ने, अजीम कौम ने इनको एक लक़ब दिया है मादरे मिल्लत का, जिसका मतलब है मादरे मीन मदर ऑफ द नेशन, ठीक है, कौम की माँ। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी बुक्स, प्रेजेंटर सना। ये रिसोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं? लाइब्रेरी बुक से लिए गए हैं। और किसने लिए हैं? सना ने लिए हैं। किसके बारे में? फातिमा जिन्ना के बारे में। ओके, दैट वाज फातिमा जिन्ना।
She was sister of Quaid-e-Azam. She helped her brother, and she was the source of meeting between Quaid-e-Azam and Muslim women. Next is Begum Rana Liaquat Ali Khan. She was born 1905 and 1990. She worked as, next is Begum Liaquat. Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister of Pakistan. Okay. She worked as an honorary secretary and typist to her husband Liaquat Ali Khan because at that time the Muslim League could not afford the salary of a secretary. Okay. She worked as an honorary secretary and typist उस वक्त, क्योंकि मुस्लिम लीग के पास इतने फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी मुस्लिम लीग, सेक्रेटरी की सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो लोग, इसलिए उन्होंने अपने शोहर की मतलब सेक्रेटरी के तौर पर और असिस्टेंट टाइपिस्ट के तौर पर काम किया है, उन्होंने टाइपिंग किया करते थे. She arranged meetings of the Muslim League women with the wife and daughter of the Viceroy so that they could explain to them the issues and problems related to the Muslim women. वो मीटिंग्स फिक्स करवाया करती थी वाइसराय की बेटी या बीवी से मुसलमान औरतों की, ताकि मुसलमान औरतें वाइसराय की बीवी या बेटी को बता सकें कि उनका जो डिमांड है सेपरेट होमलैंड की वो सही है, हक पे है, ताकि वो जो बीवी और बेटियां जो है वाइसराय की वो अपने या तो शोहर को या बाप को बता सके, उनके जरिए बात मतलब कंफर्म शेयर हो सके. She also organized the Muslim Voluntary Service and later the Women's National Guards consisting of 3 battalions. 3 दस्ते उन्होंने पहले तो मुस्लिम वॉलंटरी सर्विस उन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस करवाई, उसके बाद मुस्लिम नेशनल गार्ड्स, वुमेन्स नेशनल गार्ड्स 3 दस्तों पे शामिल थी. उनके अपने गार्ड्स थे औरतों के, औरतें ही मतलब गार्ड्स एज ए गार्ड के तौर पे भर्ती होती थी, वो ही मतलब सेफ्टी का काम और डिफेंस का काम किया करती थी. 3 दस्ते थे उनमें विथ 2400 गर्ल्स इन विच शी हरसेल्फ हेल्ड द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर. 2400 लड़कियां उसमें थी शामिल 3 दस्तों में, और वो खुद ब्रिगेडियर के पोस्ट पे उनका मतलब ओहदा वो ब्रिगेडियर का था. शी इज आल्सो द फाउंडर ऑफ द ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन. अफवा की भी वो फाउंडर है, जो अफवा ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन अभी भी है, उनकी फाउंडर ये थी बेगम राना लियाकत अली. रिसोर्सेज यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, लैपटॉप, प्रेजेंटर समीर. इसकी जो बेगम राना लियाकत अली की जो इंफॉर्मेशन है वो समीर ने कलेक्ट की थी लैपटॉप के जरिए, वकार भाई का जो लैपटॉप था. ठीक है. नेक्स्ट इज बेगम जहां आरा शाहनवाज. नेक्स्ट इज बेगम जहां आरा शाहनवाज. Third, she represented the Muslim women. She was born in 1896 and she died in 1979. She represented the Muslim women at the 3 round table conferences held in London. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल में एक टेबल राउंड होती है, उनके चारों तरफ बैठते हैं जो पार्टिसिपेंट. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी मुसलमानों और हिंदुओं के मसले हल करने के लिए लंदन में. उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने हिस्सा लिया था बेगम जहां आरा शाहनवाज ने. पहली मुसलमान औरत थी जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शामिल थी. 1930, 1931, 1932 में हुई थी. She was the first woman to make a speech in London's Guildhall. ये पहली औरत थी, लंदन गिल्ड हॉल मशहूर है, वहां पे किसी भी औरत ने पहले तकरीर नहीं की थी बेगम जहां आरा शाहनवाज से. पहली औरत थी जिन्होंने लंदन गिल्ड हॉल में तकरीर की थी. She also travelled widely and explained to the people of the other countries why the Muslims in India wanted a separate state. वो दूसरे मुल्कों में भी सफ़र किया करती थी और लोगों को बताती थी कि मुसलमान जो है इंडिया के वो क्यों अलग वतन चाहते हैं. Resources used for gathering information, newspapers, presenter रज़िया. ये जो रिसोर्सेज है इनके बेगम जहां आरा शाहनवाज के बारे में जो है रज़िया ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. ठीक है. और कौन सा तरीका यूज किया है? न्यूज़पेपर का. उन्होंने अपने अब्बू के न्यूज़पेपर, अब्बू को बोला था, उन्होंने न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करके दिए, वहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है रज़िया ने. जिसके बारे में बेगम जहां आरा शाहनवाज. नेक्स्ट, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली.
1934-2014. She was born in 1934 and she died in 2014. Professor Anita Ghulam Ali. She was a popular newscaster of the English news and as a well-known teacher of her lifetime. वो एक मशहूर न्यूज़ एंकर थी, एक इंग्लिश न्यूज़ की, और उसके अलावा she was also a teacher, famous teacher. She also wrote several articles and books. वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और बुक भी उनके बहुत सारे आर्टिकल भी हैं और बुक्स भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं. She served twice as the Sindh Minister of Education in addition to being the Minister of Culture, Science and Technology and Youth and Sports. वो 2 मरतबा सिंध की एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है, 2 मरतबा. उसके साथ साथ वो कल्चर की भी मिनिस्टर रह चुकी है, साइंस की भी, टेक्नोलॉजी की भी और यूथ एंड स्पोर्ट्स की भी. लेकिन एजुकेशन की 2 मरतबा मिनिस्टर रह चुकी है सिंध में. प्रोफेसर अनीता गुलाम अली. Professor Anita Ghulam Ali was also the founding manager of the Sindh Education Foundation, Government of Sindh. Government of Sindh ने फाउंड किया था सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, उनकी ये फाउंडिंग मेंबर है, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ये थी, इन्होंने मतलब पहले वो फाउंड किया था. और ये रूरल जो एरियाज है, under her leadership the foundation played a remarkable role in promoting quality education and bringing many out of school children to school, particularly in the rural areas of Sindh. ये जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन इनकी कस्टडी में रह के मतलब उन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को स्कूल में मतलब लाने पे मजबूर किया जो हर वक्त जो गांव के इलाके होते हैं वहाँ पे स्कूल, किसानों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको मजबूर किया फैमिलीज़ को. बहुत सारे बच्चे फिर स्कूल आने लगे इनकी कोशिशों की वजह से, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली की कोशिशों की वजह से. द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकॉग्नाइज्ड हर ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द काज ऑफ एजुकेशन. She was awarded the Pride of Performance and Sitara Imtiaz for her lifetime contribution to education. इनको 2 अवार्ड मिले थे, एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज. ठीक है, किस वजह से? इन्होंने एजुकेशन में बहुत सारे मतलब जो बैकवर्ड एरियाज थे उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया था, इस वजह से. रिसोर्स यूज्ड फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, स्मार्टफोन, प्रेजेंटर अहमद. ये रिसोर्सेज प्रोफेसर अनीता गुलाम अली अहमद ने रिसोर्सेज कलेक्ट किए हैं और क्या यूज किया है, व्हाट डिड ही यूज? स्मार्टफोन ही यूज्ड, ओके, फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोफेसर अनीता गुलाम अली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द लास्ट इज बिल्किस बानो ईदी. She was born in 1947. You know her very well because Abdul Sattar Idi. She is also currently president of Abdul Idi Foundation. Okay, Bilqis Bano Idi. She is still alive. Okay, she is a philanthropist who is also trained as a professional nurse. ये एक philanthropist है. Philanthropist mean इंसान से मोहब्बत करना, ह्यूमैनिटी से, love for humanity. ओके, और ये एक प्रोफेशनल नर्स भी है. शी इज़ द विडो ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी हु वाज अ रेनोवेंट सोशल वर्कर. ये अब्दुल सत्तार ईदी की एक मतलब बेवा है और एक मशहूर सोशल वर्कर थे अब्दुल सत्तार ईदी. यू नो वेरी वेल अबाउट अब्दुल सत्तार ईदी, एवरीवन नो. She now heads the Idi Foundation, which provides nationwide support and care to the public such as shelter homes and ambulance services. ये अब हेड कर रही है ईदी सर्विस को, जिसका काम होता है कि मतलब पूरी कौम में, पूरे पाकिस्तान में इनकी सर्विस चलती हैं. कौन कौन सी? एम्बुलेंस सर्विस और शेल्टर होम्स हैं इनके. जिनके पास घर नहीं होते हैं वो ईदी शेल्टर्स होम में रहने के लिए जाते हैं और उनको ही खाना सब कुछ मतलब सपोर्ट प्रोवाइड ये करते हैं लोग. She has received Hilal Imtiaz from the government of Pakistan, recognition of her tireless efforts for the betterment of the society. उनको हिलाल इम्तियाज़ का अवार्ड भी दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. वजह क्या थी कि मुआशरे की अच्छाई के लिए उन्होंने काम किया है. She has also been named the mother of Pakistan. इनको भी पाकिस्तान की माँ कहा जाता है, मतलब इनको लक़ब दिया गया है. लक़ब अभी वर्ल्ड नेशन वाइड नहीं मिला, नेशनली नहीं मिला या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला. ऐसे ही इनसे जो मोहब्बत या इनसे जो अकीदत रखते हैं वो बोलते हैं. रिसोर्स यूज फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मैगजीन्स, जर्नल्स एंड बुक्स, प्रेजेंटर आलिया. ये रिसोर्सेज यूज हुए हैं
मैगजीन, जर्नल्स एंड बुक्स, और आलिया ने इनको प्रेजेंट किया है। ठीक है, हानिया ने हेल्प की थी इनकी, हानिया ने हेल्प की थी लेकिन प्रेजेंट नहीं किया इनको। प्रेजेंटर आलिया है। सो दीज वर 5 वुमेन which are discussed. Bilqis Bano, okay. After the presentations, they were giving the presentation in the classroom. Okay, after then they received huge clapping from the classmates, class fellows. Okay. After the presentations, the teacher appreciated the efforts of the students had put in and invited everyone to comment on the presentations. प्रेजेंटेशंस के बाद एप्रिसिएशन का तरीका टीचर ने क्या किया कि भाई हर क्लास फेलो, उनकी क्लासमेट्स जो थे, कोई भी स्टूडेंट्स आके इनके बारे में कमेंट्स दे सकता है कि प्रेजेंटेशन कैसी थी। टीचर ने तारीफ नहीं की लेकिन दूसरों से तारीफ सुनना चाहते थे उनके बारे में। सादिया stood up and commented that the information about these women had inspired her to dream big and to work for the nation. सादिया खड़ी हो गई, वहाँ पे क्लास में थी, उन्होंने कहा कि मेरा भी यही ख्वाब है, मेरा ख्वाब है कि मैं भी कौम के लिए खिदमत करूँ, ऐसा कुछ बनूँ, ऐसा कुछ करूँ जिसमें कौम की मैं खिदमत कर सकूँ। ये अब ये कमेंटेटर्स, दे आर द कमेंटेटर्स नाउ। नंबर 1 सादिया। The teacher then asked the few students to share their future dreams with the class. टीचर ने मजीद स्टूडेंट से पूछा कि आप लोग अपने ड्रीम्स जो है, आपके ख्वाब जो हैं अपने ज़िंदगी के, वो शेयर करें क्लास वालों के साथ। मरियम shared that she wanted to be an educationist like Anita Ghulam Ali and her grandmother who was also an educationist. मरियम खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि मैं अनीता गुलाम अली की तरह एजुकेशनिस्ट बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली और उनकी अम्मी की तरह, क्योंकि वो भी एक एजुकेशनिस्ट थी। ठीक है, ग्रैंड मदर मीन सॉरी नानी या दादी का नाम होगा। शी एक्सप्रेस्ड हर विश टू वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फीमेल एजुकेशन। मरियम ने कहा कि वो फीमेल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है पाकिस्तान में, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, एंड अदर इज कमेंटेटर इज मरियम, अनदर कमेंटेटर मरियम। Next, Hira told her class fellows that she wanted to be a philanthropist like Bilqis Eidhi and wanted to protect girls from all troubles. Another student was there, Hira. उन्होंने कहा कि वो बिल्किस बानो की तरह बनना चाहती है और माशरे की और लोगों की मदद करना चाहती है। ठीक है, another commentator, Hira. Daniel added that like Abdul Sattar Eidhi, he would like to help all human beings in trouble. Daniel, another student, was there. He told that he wanted to become like Abdul Sattar Eidhi. Okay, क्योंकि लोगों की मदद करना चाहते थे दानियाल भी। These 4 students appreciated Sana's groups or their presentations. Okay, they gave comments for their presentations. The teacher was very happy to see the enthusiasm of the future leaders of the country. टीचर जो थे, जो सोशल स्टडी के टीचर थे, जो उनकी प्रेजेंटेशन ले रहे थे, मतलब वो बहुत खुश हुए कि इनको तो बहुत सारे लीडर मिल गए जिनके मुस्तकबिल में कोई ख्वाब है और मुस्तकबिल के वो लीडर बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे लीडर उसके मुस्तकबिल के मिल गए और उन बच्चों से बहुत खुश हुए। ठीक है, तो दैट वाज द यूनिट 6.1, वेरी इजी यूनिट। It started from an assignment, important women of Pakistan. Assignment was given by a social study teacher. Okay, and the members who have to collect the information about to complete the assignment were Sana, Alia, Sameer, Ahmed, Ania, Razia. They all agreed to collect information through these resources: library, laptop, newspaper, smartphone, magazines, and journal and books. They had agreed, they are all agreed to collect information about these famous women who have worked for the Pakistan creation and development. Fatima Jinnah, Begum Rana Liaquat Ali, Begum Jahan Ara, Professor Anita Bilqis Bano,
which tool was used by these all students or these all group members? The tool ideal. First of all, they identify the problem, then define, explore, action, and look back. Okay, they used this tool. You can also use this tool to solve your problem. There is a problem in your life. First of all, you have to identify the problem. Which is the problem? After then you define the problem. Then which condition of the problem is, then how can we solve it? After then you must explore this, you can say causes, effects and suggestion. Okay, then you should take it into practice, take action to solve the problems. After then look back, either the problem is solved or it is remaining. Okay, if there is remaining, then you have to do much more about the solution of that problem. If it is completed, then you should leave it and you should present it. Okay, presentation is also important. After giving the presentation about these famous ladies, teacher appreciated in this way that he or she called the students and asked them to give comments about the presentation. Sadia told that he had a future dream. She had a future dream and she wanted to do like this. Or Maryam told that she wanted to be like Professor Anita Ghulam Ali, educationist. Hira said that she wanted to be like Bilqis Bano. And Daniel, in the student he said that she wanted to be like Abdul Sattar Idi to help the people. Okay, ये इम्पोर्टेंट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन, इन औरतों ने पाकिस्तान की तख्लीक और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया था. हमारी औरतें जो हैं या हमारी जो औरतें थीं, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को बनाने में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं. हमें औरतों के किरदार को नहीं भुलाना चाहिए. वी शुड नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ वुमेन फॉर द पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, उनको भी हमें इज्जत देनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए. करंटली ई सेक्टर. अच्छा, ये एक्सरसाइजेज हैं नेक्स्ट पेज पे. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप भी कोशिश करेंगे. यू विल आल्सो टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स और ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दिस टूल आइडियल, द टूल ऑफ आइडियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. ओके, साइंस की टीचर ने बताया था जो सना के ग्रुप्स को. ठीक है, लेट्स come on the page number 137, exercise number 6. Exercise number 1. I will solve. I will explain how you can solve the exercises. 1 to 8 exercises. 137 to 141. So write the answers to the following questions in your notebook. How many students were there in Sana's group? Write their names. आप लोगों ने इनके आंसर्स देने हैं. 6 students were in Sana's group और ये नाम लिखने थे: सना, आलिया, समीर, अहमद, हानिया, रजिया. How many famous women of Pakistan mentioned the text? Write their names in the order of the appearance in the text. ठीक है. अच्छा, आपको ये वुमेन जो फेमस वुमेन है पाकिस्तान में कितनी है? 5 फेमस वुमेन्स और उनके नाम लिखने हैं, लेकिन जो अपीयरेंस जिसका पहले जिसकी तस्वीर दी गई है तस्वीर के हिसाब से. ठीक है, like that: Fatima Jinnah, Begum Nana Liaquat Ali, Begum Jahan Ara Shanwaz, Professor Anita Ghulam Ali, Bilqis Bano. Number 3, how many students shared their dreams at the end of the presentation? Write their names. कितने स्टूडेंट्स ने अपने ड्रीम्स शेयर किए हैं एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन? उनके नाम लिखें. 4 स्टूडेंट्स शेयर देयर ड्रीम्स, नाम दिए लिखे गए हैं: सादिया, मरियम, हिरा, दानिया. ठीक है. अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2. Work in pairs. Find the words, following words in the text and underline them. ये exercise number 2 पे words meaning है. Words meanings are given. You can search the meanings at the glossary. First of all, you should give your own simple word meaning. If you cannot understand these words or meanings, then you can search it from the glossary given at the end. And pages. Okay, page number 216. Exercise number 3. Do the following exercise in your notebook. Fill the blanks using all the words given in exercise 2. You can use each word only once. The first one has been does and as an example. ये नीचे blanks दिए गए हैं और इन blanks में ये words use होंगे ऊपर वाले. ठीक है. How many blanks are there?
11 blanks are there, 11 words are there. एक blank में एक word use करना है आप लोगों ने. जैसे कि पहला word जो है वो use already मतलब उन्होंने example के तौर पे दिया है. In first, page number 137, exercise number 3. And inspired, in first is inspired. In second, you have to use philanthropist. In third, simultaneously. In fourth, recognition. Turn the page. In fifth, opinions. In sixth, contribution. In seven, enthusiasm. 8, rehearsed. 9, tireless. 10, excess. 11, renounced. Okay. Next, exercise number 4. Do you remember what each letter stands for, the ideal problem solving tool, and what it means? Read the text and complete the following statements. Write all the 5 complete statements in your notebook. The first one has been done as an example. यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4 पे आइडियल एक वर्ड अलग लिखा गया है. आपको पता है कि भाई ये आइडियल्स कैसे मतलब हर अल्फाबेटिकली कैसे कैसे यूज किया गया है. आप इसको पेज नंबर 132 पे देखेंगे तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग ये दिस वन यहाँ जो बताया गया है कि I stands for, D stands for, E stands for, A stands for, L stands for. पेज नंबर 132. आलिया जो बताती है कि भाई साइंस के टीचर ने ये कहा था आइडियल. ठीक है. और उसके अलावा मैंने लिखा भी है I stands for आइडियल. पहले ब्लैंक में लिखे उन्होंने लिखा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. दूसरे ब्लैंक में आप लोगों ने लिखना है डिफाइन. और here we define how to solve the problem. Define how to solve the problem दूसरे ब्लैंक में लिखना है. अच्छा, E stands for पहले ब्लैंक में लिखना है explore. और दूसरे higher we दूसरे ब्लैंक में लिखना है explore the ways to solve the problems. तरीका ढूंढना है. ठीक है. A stands for action and here we try to take possible action. L stands for look back. Here we whether the problem is solved or not. ठीक है. ये आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लोर, एक्शन, लुक बैक. ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 5 MCQs. एक्सरसाइज नंबर 5 MCQs टाइप्स क्वेश्चन. Which of the following sources of information were not used by the students? कौन से ये तरीके नहीं यूज किए गए हैं, रिसोर्सेज स्टूडेंट ने यूज नहीं किए हैं. लैपटॉप एंड इंटरनेट यूज किया गया है. लैपटॉप एंड इंटरनेट इन द स्मार्टफोन. ओके. न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स यूज किए गए हैं. न्यूज़पेपर, मैगजीन्स. बुक्स एंड स्मार्टफोन, बुक्स भी यूज किए गए हैं, स्मार्टफोन भी यूज किया गया है. रेडियो एंड टेलीविजन यूज नहीं किए गए हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वाला है रेडियो एंड टेलीविजन. डी पे ऑप्शन टिक लगा दें आप लोग. नंबर सेकंड, मादरे मिल्लत मीन्स लीडर ऑफ एशिया. नो. लीडर ऑफ द नेशन. नो. मदर ऑफ द नेशन. यस, मदर ऑफ द नेशन. सी इज करेक्ट ऑप्शन. मादरे मतलब मीनिंग ही है मादरे मिल्लत की. मिल्लत मीन कौम एंड मादरे मीन मदर. द फर्स्ट वुमेन हु रिप्रेजेंट द मुस्लिम वुमेन इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज, वो पहली कौन सी औरत थी जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया. तीनों में बेगम जहां आरा शाहनवाज. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो फर्स्ट ए इज करेक्ट. बिल्किस ईदी वाज अवार्डेड. बिल्किस को कौन सा अवार्ड मिला था? बिल्किस बानो ईदी को. सितारा इम्तियाज उनको दिया गया था प्रोफेसर अनीता गुलाम अली को. सो ए इज करेक्ट. नंबर 4. नंबर 5, प्रोफेसर अनीता गुलाम अली वाज अपॉइंटेड ट्वाइस एज अ मिनिस्टर ऑफ. 2 मरतबा प्रोफेसर अनीता गुलाम अली किसकी मिनिस्टर बनी थी? एजुकेशन की. हालांकि वो कल्चर की मिनिस्टर बन चुकी है लेकिन एक मरतबा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मतलब लेकिन एक मरतबा. कल्चर एंड स्पोर्ट्स की लेकिन एक मरतबा. Come to the exercise number 6, page number 139. Work in pairs and find out the things or achievements about each of the following famous women. Once you have already discussed, write the 2 things, achievements of each of these women in your notebooks. ठीक है ना. पेयर्स में मतलब 2 ग्रुप में वर्किंग करनी है. और ये जो नीचे और लेडीज बताई गई हैं, वुमेन बताई गई हैं, इनके बारे में 2 आप लोगों ने क्वालिटीज बतानी है. इनकी 2 या 2 काम बताने हैं. मैं आप लोगों को सिंपली काम बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतना ज्यादा, मतलब लेंथी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ. फातिमा जिन्ना वर्कड और हेल्प्ड हर ब्रदर एंड शी वाज अ सोर्स ऑफ मीटिंग बिटवीन मुस्लिम वुमेन एंड कायद आजम. ठीक है. बेगम राना लियाकत अली सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट एंड शी वाज आल्सो ब्रिगेडियर. बेगम जहां आरा शाहनवाज attended the meeting
3 round table meeting of represent women at the 3 round table conferences, or she was the first woman to deliver a speech in London Guildhall. Professor Anita Ghulam Ali, educationist, and she was the founder of Sindh Education Association. Bilqis Eidi, philanthropist, and she was the head of, or she is the head of currently Eidi Foundation. Okay, exercise number 7. Read the text and the fill the, ये टेबल कॉलम दिए गए हैं. पहले में नेम दिया गया है, ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ डेथ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ बर्थ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ डेथ, मेन कंट्रीब्यूशन. ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ में फातिमा जिन्ना की ईयर ऑफ बर्थ कौन सी है? 1893 और 1969. अच्छा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ बर्थ, इसमें आप लोगों ने लिखना है कि सबसे पहले ये पैदा हुई थी, इससे पहले भी कोई और पैदा हुई थी. सबसे पहले, सबसे बड़ी औरत ये है, मतलब पहले ये पैदा हुई थी, कोई और. 1893 मतलब सबसे पहले यही पैदा हुई थी, तो इसका पहले नंबर पे आएगा. और सबसे पहले इंतकाल भी इनका हो गया था, तो इनका भी नंबर ईयर ऑफ डेथ में भी पहले नंबर पे आएगा. ठीक है. अच्छा, हेल्प हर ब्रदर फॉर अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी अचीवमेंट इनकी लिखनी है. ठीक है. अच्छा, नंबर 2 बिल्किस बानो ईदी, 1947 अलाइव. अच्छा, ये सबसे आखिर में ये पैदा हुई थी, मतलब इनसे पहले जो ईयर्स हैं वो दूसरों के. तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ बर्थ क्या लिखेंगे? 5. और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ डेथ इसका कोई भी नहीं है क्योंकि अभी तक जिंदा है. रिनोवेंट सोशल वर्कर, ठीक है, कंट्रीब्यूशन में लिखेंगे. अनीता गुलाम अली 1934, ये चौथे नंबर पे. ठीक है, पहले नंबर पे फातिमा जिन्ना, दूसरे नंबर पे बेगम जहां आरा शाहनवाज, तीसरे नंबर पे बेगम राना लियाकत अली, चौथे नंबर पे ये है. ठीक है, और चौथे नंबर पे इंतकाल भी इनका चौथे नंबर पे आएगा. और एजुकेशनिस्ट थी बेगम जहां अली आरा शाहनवाज, ये दूसरे नंबर पे. पहले फातिमा जिन्ना, आफ्टर देन शी, एंड आल्सो शी डाइड एट द सेकंड आर्कियोलॉजिकल ऑर्डर एंड 2. इसका भी इंतकाल में भी दूसरा नंबर आएगा. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लिया था और पहली औरत थी जिन्होंने लंदन गिल्डहॉल में तकरीर की थी. राना लियाकत अली ये तीसरे नंबर पे. इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ बर्थ भी 3rd नंबर, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय ईयर ऑफ डेथ भी 3rd नंबर. सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट थी और ब्रिगेडियर थी. एक्सरसाइज नंबर 8. एक्सरसाइज नंबर 8 में ये प्रॉब्लम्स, मतलब सना वॉज वरीड बिकॉज, सना क्यों परेशान थी ये बताया गया है कि शी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन. बाकी जितने भी हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आप लोग खुद कर सकते हैं इसके पढ़ने के समझने के बाद. अच्छा, 2 में जैसे आप लोगों को बता रहा हूं, आलिया सजेस्टेड दैट दे यूज द आइडियल टूल. आलिया ने सजेस्ट किया था कि आइडियल टूल यूज करें. क्यों? इट वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल, बिकॉज इट वाज प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. बाकी जितने भी हैं आप लोग खुद करेंगे. ओके, ये एक्सरसाइज नंबर हमने सॉल्व कर लिए 1 to 8. अच्छा, 142 पे आ जाए. ये आप लोगों का असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2. और आई विल असेस योर असाइनमेंट दिस एंड आई विल आल्सो गिव द मार्क्स ऑन दैट असाइनमेंट. ओके, सो टेक राइट डाउन द असाइनमेंट टॉपिक. एक्सरसाइज नंबर 9 इज असाइनमेंट. ओके, पेज नंबर 142. Exercise number 9 is assignment, page number 142. Okay. I have also given you the assignment. I had also given you the assignment in previous video. That was about previous video was about great visionaries. No, not health problems caused by mosquitoes. Now I am also giving another assignment. This is the second assignment. Okay. Exercise number 9, page number 142 is your assignment. I am writing the assignment topic here.
Okay, this is your topic. You have to search and you have to explore any problem in your area, which is the problem in your area, and you should solve that problem by using the problem solving tool ideal. Okay, आप आइडियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल यूज करें और उसके जरिए आप लोगों को वो मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने एरिया में. थोड़ी बहुत मेहनत है. आप एरिया में यू कैन सी दैट व्हिच इज द प्रॉब्लम, यू कैन नोटिस द प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दैट बाय यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप एरिया में ढूंढें और उनको सॉल्व करें और वो एक असाइनमेंट की शेप में, मतलब एक फाइल की शेप में उसको आप लोग कवर करके उनको फाइनलाइज करके फिर लेकर आए. दिस इज योर असाइनमेंट टॉपिक. ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द यूनिट वेरी वेल एंड आई होप दैट यू विल कंप्लीट आल्सो असाइनमेंट्स. थैंक यू वेरी मच.